ہر وقت جو ہے کہ جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، سایہ ہو گیا، بندش ہو گئی ہے، ہر وقت اسی چکر سے ہم نکلتے نہیں ہیں۔ اللہ پر توکل رکھیں، وہ رزق دیتا ہے، وہ رزق تنگ بھی کرتا ہے، وہ رزق کشادہ بھی کرتا ہے، بندوں کو آزماتا بھی ہے، بندوں کو ڈھیل بھی دیتا ہے۔ اس کی ڈھیل سے بھی ڈریں اور اس کی آزمائش میں بھی پورا اترنے کی کوشش کریں اور اسی کے حضور دامن پھیلائیں۔ جب مشکلیں آ جائیں تو مسلح بچھا لیں، کسی بابے کے پاس نہ جائیں۔ یہ بڑے گندے لوگ ہیں، یہ سامنے اب چیزیں آ رہی ہیں، بڑے گندے اور غلیظ قسم کے لوگ ہیں، ان کی نظروں میں غلاظت بھری ہوئی ہے، اور جو ہے وہ لوگوں کے ہجوم سے کبھی متاثر نہ ہوں کہ فلاں وہاں سے اتنے لوگ جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اتنے لوگ آ رہے ہیں، کچھ ہے تو آ رہے ہیں، تو جو بت خانوں میں جا رہے ہیں اتنے لوگ تو کچھ ہیں تو جا رہے ہیں، کیا مطلب یہ کوئی معیار ہے؟ تو جب کوئی مصیبت بنے مصلح بچھا کے دعا مانگو اللہ کی بارگاہ میں، نوافل پڑھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، منت مان لو، روزوں کی منت مان لو، نمازوں کی منت مان لو، صدقہ کرنے کی منت مان لو، اور اللہ کے نیک بندوں سے جا کے دعا کرواؤ۔ غریبوں میں آپ رزق بانٹو، اس سے برکت ہوگی، اس سے پریشانیاں دور ہوں گی۔ رزق کم ہو گیا ہے تو غریبوں کو دو، لگتا ہے غریبوں کو دو گے تو اور کام ہوگا، نہیں، جب دو گے تو اللہ کے سچے وعدے آپ کو نصیب ہوں گے اور آپ کو برکتیں نصیب ہوگی، اس کے راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو تکلیفیں آتی ہیں یہ گناہ اس سے جڑتے ہیں، اس سے درجے بلند ہوتے ہیں، اس سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ تو مصیبت آئی تو بابے کے پاس بھاگ گئے، جو فاسق اور فاجر اور مشرکانہ عقائد رکھتا ہے اس کے پاس بھاگ گئے، تو پھر ایک مصیبت بھی صحیح اور ایک اپنا ایمان بھی اجاڑا۔ اس لیے اس مصیبت سے جو باطنی فوائد ملیں گے، جو روحانی مرتبے بلند ہوں گے، ان کو حاصل کریں۔ تو غیرت کے ساتھ جینے کا ڈھب ہم سیکھیں، مت ایسے لوگوں کے پاس جائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار خراب ہو گیا، گھر سے برکت اٹھ گئی، تو اس کا سبب یہ سمجھتے ہیں کسی نے تعویذ ڈال دیے۔ میاں جھوٹ چھوڑ دو، رحمت کے فرشتے نیڑے آ جائیں گے، تمہارے گھروں کے دور چلے گئے۔ تم نے گھر میں تعویذ باندھ دیا، گھر میں ہنڈیاں بھی الٹی لٹکا دی، تم نے جو ہے وہ بتیاں بھی جلائیں گھر میں، تم نے بڑا کچھ کیا لیکن جھوٹ نہیں چھوڑا۔ تمہاری بتیاں جلانے سے، تعویذ لٹکانے سے فرشتے واپس نہیں آئیں گے۔ فرشتے واپس تب آئیں گے جب جھوٹ چھوڑو۔ تو جھوٹ چھوڑو، رحمت کے فرشتے نیڑے آ گئے تو رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں۔ تو ہم بیماری اور ہے، علاج اور کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا تو کام ہی جب بھی کوئی مشکل بنی تعویذ لینے دوڑ پڑتے ہیں، اور بابا بھی کہتا ہے چنگا ہو گیا تو آ گیا، ورنہ چل جانا سی تعویذ۔ چونکہ اگر وہ یہ نہ بتائے تو اس کا تو کاروبار ختم ہو گیا، وہ تو بیٹھا اسی کام کے لیے ہے۔ اس نے تو ٹاٹن جو ہے وہ رات فوٹو سٹیٹ کروا کے رکھے ہوئے، 10 اس کو دینے، 15 اس کو دینے، وہ تو کام ہی یہ کرتا ہے۔ اور وہ کہے کہ نہیں بابا تیرے گھر میں جھوٹ ہے، تیرے رزق میں ملاوٹ ہے، تو نماز نہیں پڑھتا، تو سجدہ ریز نہیں ہوتا، تیرے یہ خرابیاں، تو پھر بابے کے پاس کسی نے کیا لینے آنا؟ جب مشکل ہوگی تو مسلح پہ سر جھکائے گا، بابا تو بھوکا مر جائے گا۔ اس لیے بابا کہتا چنگا ہو گیا تو آیا ویلے سر آ گیا، نہیں تو بھی چل جانے تھے، تبھی تو کچھ لینے نہیں تھے۔ پھر مریض بن جائے، ہر اتوار کو بابے کے در پہ حاضری دینی پڑتی ہے۔ چھوڑو بابوں کو، اللہ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ 5 گانا نماز یہ شعار زندگی بنا لو، دیکھنا گھر میں برکتیں اتریں گی۔ جھوٹ نہ بولو، فرشتے رحمت کے نیڑے آ جائیں گے۔ ہر بار جھوٹ بولیں گے، 1 میل 1 میل 1 میل 1 میل، ذرا سوچے نا، ہر بندہ یہاں بیٹھے سوچے ہمارے فرشتے کتنے کو دور ہو چکے ہوں۔ سویر سے لے کر جھوٹ ہی جھوٹ، روز کتنا اور پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرو، کریم وہ اتنا ہے، فرشتوں کو حکم کرے گا واپس جاؤ، اس کے گھر کے اوپر اپنے پر ڈال دو۔ یا اللہ اس سے تو بدبو دی، اور ہم یہاں تک آئے، کہا توبہ کر دیا، اس گھر میں خوشبوؤں کے بسیرے ہو گئے۔ تو جھوٹ سے توبہ کرو، یہ علامت ہے نفاق کی۔ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، جو بندہ عادی جھوٹ ہوتا ہے اس کے لیے وہ چسکا لگ گیا ہوتا ہے نا جھوٹ بولنے کا، نشہ لگ جائے کسی کو تو نشہ اتنی جلدی چھوٹتا تو نہیں ہے، حالانکہ وہ خود بھی جان رہا ہوتا ہے کہ برا ہے۔ گھر کے برتن بیچ دیتے ہیں نشے والے، لیکن اس کے باوجود چھوٹتا نہیں ہے۔ لیکن جو ہے وہ کوشش کر کے جب چھوڑ لیں گے، سچی توبہ جب انسان اپنے دل سے کرتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے۔ سچ میں طمانیت ہے، اور جھوٹ میں جو ہے وہ ریبہ فرمایا گیا، جھوٹ کے اندر بے چینی ہے، اضطراب ہے،
अंदर की बेकरारी है। इसलिए सच्चाई की तरफ आओ। हो जाए। और आज हमारे घरों में कुरान बंद पड़ा हुआ है, हमने उसके ऊपर गुलाब चढ़ा के ऊपर ताक पे रख दिया। कभी कभी उठाते हैं और उसको झाड़ करके फिर वहां खुशबू लगा के रख देते हैं। कभी घरों में कुरान खुलता था, सुबहों का आगाज कुरान की तिलावत से हुआ करता था। आज सुबह का आगाज फेसबुक से होता है। कभी घरों से कुरान पढ़ने की आवाज आया करती थी, आज पॉप म्यूजिक की सदाएं सुनने को। फिर यही वजह हुई ना कि आज हर बंदा कहता है मेरे ऊपर किसी ने टूना कर दिया है, किसी ने जादू कर दिया है, बदरूहों का साया है, हमारे घर के ऊपर किसी ने जो है वो कुछ कर दिया हुआ है। मैं कहता हूं कि तुम्हारे घर में कुरान जो नहीं है, फिर बदरूहों का ही साया होना है। अगर कुरान की तिलावत होती, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतरते, अल्लाह की रहमतों और उसके अनवार की बारिश होती तुम्हारे घरों के अंदर। और फिर क्या होता है, भागते आमिलों के पास, और आमिल कहेगा कि तुझे कुछ नहीं है, किताबुल्लाह से दूरी का नतीजा है, बदअमली का नतीजा है, दीन से एराज का नतीजा है। तो फिर उसका तो कारोबार वहीं खत्म हो गया। वो कहता तू तो वक्त पे आ गया है, अगर 2 दिन लेट हो जाता तो ये तावीज़ तो चल जाने। फिर मरीज बन जाता है जहनी। और जो कुरान की चौखट पे सलामी नहीं देता, उसको फिर इस बाबे की, इस आमल की चौखट पे सलामी भी देना पड़ती है और अपना माल भी गंवाना पड़ता है। और रोज़ आए दिन अखबारों के अंदर ऐसे जाली आमलों की कहानियाँ छपती हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर भी आप देखते हैं कि ये कैसे कैसे बदनसीब लोग होते हैं और कैसी कैसी कार्रवाइयाँ भी करते हैं। कुरान से दूरी का नतीजा हुआ कि इनकी चौखट पे रुसवा होना पड़ा। अगर घरों में कुरान की तिलावत का मामूल होता तो कुरान जिंदगी देता, कुरान रोशनी देता, कुरान बरकत उतारता, कुरान के दम से रहमत का नुज़ूल होता, रहमतों के फरिश्ते उतरते, घरों में चरागा होता, अंदर के रोग मिटते, बीमारियां खत्म होती, अल्लाह की कुर्बत नसीब होती, हुजूर के कलब से कुर्बत का नूर नसीब हो जाता। इस किताब से दूरी का नतीजा हुआ कि आज हम रुसवा हो गए। अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द किया करें। लेकिन इन सब के बावजूद अगर मुश्किलात आ जाती हैं तो कोई बात नहीं, मुश्किलें आजमाइशें ये अल्लाह की तरफ से नबियों को आई हैं। हजरत इमाम राजी ने लिखा है कि मक्के से लेकर ताइफ तक 70 ऐसे नबियों की कब्रें हैं जिनकी वफात सिर्फ भूख की वजह से हुई। हम एक दिन का फाका आ जाए, थोड़ा सा कारोबार नरम हो जाए तो बाबों के पास भाग के अल्लाह के साथ शरीक ठहराने लग जाते हैं। क्यों, किस वजह से? आजमाइश सहें, बर्दाश्त करें। तो ऊपर नीचे ये दिन बदलते रहते हैं, दिन फिरते रहते हैं। हर वक्त जो है कि जादू हो गया, टूना हो गया, साया हो गया, बंदिश हो गई है। हर वक्त इसी चक्कर से हम निकलते नहीं हैं। अल्लाह पर तवक्कुल रखें। वो रिज़्क देता है, वो रिज़्क तंग भी करता है, वो रिज़्क कुशादा भी करता है। बंदों को आजमाता भी है, बंदों को ढील भी देता है। उसकी ढील से भी डरें और उसकी आजमाइश में भी पूरा उतरने की कोशिश करें और उसी के हुजूर दामन फैलाएं। जब मुश्किलें आ जाएं तो मुसल्ले बिछा लें। घर के बच्चों को भी कहें कि ये मुश्किल आ गई है, लगता है अल्लाह नाराज हो गया, चलो मुसल्ले बिछाओ। अगर बेटियां भी नमाज पढ़ रही हों, नवाफल अदा करके रब के हुजूर दुआ मांग रही हों, बेटे भी दुआ मांग रहे हों, छोटे छोटे बच्चे भी दुआ मांग रहे हों, तो क्या अल्लाह खाली मोड़ देगा? तो ज्यादा से ज्यादा नेक मजालस के अंदर शामिल हो जाएं। तो बिलखुसूस मैं अपने पीर भाइयों को पाबंद करता हूँ कि आप अपने घरों में भी पाबंद करें, किसी बाबे के पास ना जाएं। ये बड़े गंदे लोग हैं, ये सामने अब चीजें आ रही हैं, बड़े गंदे और गलीज किस्म के लोग हैं। इनकी नजरों में गलाजत भरी हुई है और जो है वो लोगों के हुजूम से कभी मुतासर ना हो कि फलां वहां से इतने लोग जा रहे हैं। ला यसीरुल बातिल हक्कन बेकसरतिल मुतमस्सिकीना बिही। अगर किसी झूठ के साथ, किसी बातिल के साथ ज्यादा लोग वाबस्ता हो जाएं तो उस वाबस्तगी से बातिल हक नहीं हो जाता। लोग कहते हैं जी इतने लोग आ रहे हैं, कुछ है तो आ रहे हैं, तो जो बुत खानों में जा रहे हैं इतने लोग तो कुछ हैं तो जा रहे हैं, क्या मतलब ये कोई मयार है? तो जोहला का जमा होना, जोहला का कहीं जाना, ये मयार नहीं है। मयार जो अल्लाह रसूल ने दिया है हमारे नजदीक बस वही है। तो जब कोई मुसीबत बने, मुसल्ला बिछा के दुआ मांगो अल्लाह की बारगाह में, नवाफिल पढ़ो, सदका करो, खैरात करो, मन्नत मान लो, रोजों की मन्नत मान लो, नमाजों की मन्नत मान लो, सदका करने की मन्नत मान लो और अल्लाह के नेक बंदों से जाके दुआ करवाओ। गरीबों में आप रिज्क बांटो।
उससे बरकत होगी, उससे परेशानियां दूर होंगी। रिज्क कम हो गया है तो गरीबों को दो, लगता है गरीबों को दोगे तो और कम होगा, नहीं, जब दोगे तो अल्लाह के सच्चे वादे आपको नसीब होंगे और आपको बरकत नसीब होगी, उसके राह में देने से कम नहीं होता है। इसलिए मैं ख़ास तौर पे ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि इन दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह के लोग हैं और मुख्तलिफ जो है वो चैनल्स के ऊपर उनको सामने लाया जा रहा है। इन लोगों से अपने दामन को छुड़ाएं और सालिहीन की सोहबत को इख्तियार करें। सालिहीन की सोहबत से आपको नूर मिलेगा, रोशनी मिलेगी। आजमाइश टल जाती है तो फिर भी, वरना उसमें इस्तिकामत की तौफीक मांगे, चूंकि जो बला पर सब्र करता है उसे भी अजर दिया जाएगा। सही हदीस में आता है कि अहले बला को क़यामत के दिन जो सिला दिया जाएगा तो दूसरे लोग आरज़ू करेंगे काश हमारे जिस्म को लोहे की कैंचियों से काट दिया जाता। तो ये जो तकलीफें आती हैं ये गुनाह इससे जड़ते हैं, इससे दर्जे बुलंद होते हैं, इससे अल्लाह की कुर्बत नसीब होती है। तो मुसीबत आई तो बाबे के पास भाग गए, जो फासिक और फाजिर और मुशरिकाना कायद रखता है उसके पास भाग गए, तो फिर एक मुसीबत भी सही और एक अपना ईमान भी उजाड़ा। इसलिए उस मुसीबत से जो बातनी फ़ायदे मिलेंगे, जो रूहानी मर्तबे बुलंद होंगे, उनको हासिल करें। तो गैरत के साथ जीने का ढब हम सीखें, मत ऐसे लोगों के पास जाएं। अल्लाह आपको मुझे अपनी रहमतों के साए में रखे। मेरा ताल्लुक एक देहात से है और मुझे अच्छी तरह याद है कि वालिद गिरामी मुझे उंगली से लगा करके मस्जिद में ले जाया करते थे। तो बूढ़े बुजुर्ग जो मस्जिद में जाने से कासर थे वो घरों में बैठ के कुरान पढ़ते होते थे और अमूमन ज़ोहर के वक्त भी और सुबह के वक्त भी घरों से कुरान पढ़ने की आवाजें आया करती। आज घरों से पॉप म्यूजिक की सदाएं सुनने को तो मिलेंगी, लेकिन कुरान के नगमे मौकूफ हो गए। यही वजह है कि आज हमारे घरों से बरकत रूठ गई। दौलत की फरावानी के बावजूद, वसाइल की कसरत के बावजूद, असबाबे आसूदगी हासिल होने के बावजूद ना आसूदगी है, ना सुकून है, ना तमानियत है, ना बरकत रही, इसलिए कि हमारे घरों से कुरान रुखसत हो गया। आज सुबह उठ के फेसबुक का चेहरा तो देखते हैं, लेकिन कुरान का नक्शा नहीं देखा जाता। तो बरकत के काफले घरों से रुखसत हो गए और घर बरकतों और रहमतों से खाली हो गए। आज भी अगर हमने घरों में बरकतों को वापस बुलाना है, रहमतों को अपने घरों में वापस लाना है, तो कुरान मजीद की तिलावत को अपने मामूलात में शामिल कर लीजिएगा। फिर घर में आसेब का साया नहीं होगा, टूना और जादू नहीं होगा। फिर किसी बाबे और मलंग के पास जा करके आपको अपने मसाइल नहीं बताने पड़ेंगे। आपके घर में कुरान है, सारे दुखों का इलाज इसी मुर्शिद के पास है। सारी मुसीबतें और सारी मुश्किलें और सारे मसाइब इसी कुरान के दामन से दूर होते हैं और इसी कुरान से वाबस्तगी से घर में बरकतें उतरती हैं। फिर आपको ना आसेब, ना जादू, ना टूना और ना किसी ने कोई बंदिश की है, ना किसी ने कोई मसला किया है, कुछ नहीं होगा। आपके घरों पे रहमतों के साए होंगे, इसलिए कि आपके घरों में कुरान जब तिलावत होगी तो रहमतों के फरिश्तों का नज़ूल। तो जब रहमतों के फरिश्ते तुम्हारे घर में उतरेंगे तो फिर कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई बंदिश, कोई दुख आपके घरों में नहीं होगा। इसलिए कुरान मजीद की तिलावत को अपने मामूलात जिंदगी में शामिल कीजिए। देखिए ये रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना अक्सर घरों के अंदर कुरान मजीद की तिलावत का मामूल रहा, और जो दिन बाकी हैं इन अय्याम में तिलावत कलाम मजीद का मामूल बाकी रहेगा। तो इसकी बरकतें आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। और अगर ये पूरा साल हमारे घरों में मामूल बाकी रहे, हमारी सुबह का आगाज ही कुरान मजीद की तिलावत से हो, बेटियां भी कुरान खोल के सुबह बैठ जाएं और बेटे भी कुरान खोल के बैठ जाएं, बूढ़े भी कुरान खोल के बैठ जाएं, जवान भी कुरान खोल के बैठ जाएं, तो मुझे बताइए कि कितनी रहमत और कितनी बरकत का घरों में नुज़ूल हो। तो इसलिए अपने घरों में कुरान मजीद की तिलावत के मामूल को कभी भी तर्क न कीजिए। चाहे रोज के 2 सफ़े पढ़िए, कुरान मजीद की तिलावत के मामूल को बाकी रखिए। और अगर अल्लाह आपको नसीब करे तो इसको मफहूम और तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि कुरान का जो हमारे नाम पैगाम है वो भी हम समझ पाएं कि कुरान हमें क्या बता रहा है और हमें क्या मैसेज दे रहा है, ताकि हमारी जिंदगियां इस पाकीज़ा
किताब की रोशनी और किताब के उजालों में बसर हो। और ये किताबुल्लाह का तीसरा हक है कि इसको मफहूम व मतलब के साथ समझने की कोशिश करें। ये हमारे रब का हमारे नाम पैगाम है। आपके किसी दोस्त का, किसी मिलने वाले का आपके नाम खत आ जाए और वो उस जुबान में हो जो जुबान आप ना जानते हो, तो उतनी देर तक आप मुतमईन नहीं होते जब तक उसके मंदरजात समझ नहीं लेते, किसी ऐसे शख्स से वो मजमून जान नहीं लेते जो वो जबान जानता हो। तो हमारे रब का हमारे नाम ये मैसेज है, हमारे नाम ये पैगाम है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से। तो हमें इसको समझे बगैर चैन क्यों आ गया है? तो हम इस पैगाम को समझें कि हमारा रब हमें क्या फरमा रहा है, किन उमूर का हुक्म दे रहा है और किन बातों से हमें रोक रहा है। अगर हम कुरान मजीद को इस अंदाज से तिलावत करेंगे और कुरान मजीद को समझ के पढ़ेंगे तो हमारी जिंदगी खुद ब खुद तब्दील होती चली जाएगी। ये किताब जिंदा हमारी जिंदगी के अंदर उजाले और रोशनियां डाल देगी और हमें जिंदगी गुजारने का रास्ता दिखाएगी, क्योंकि इसके अजायबात। हुजूर की खिदमत में बैठे हुए थे, फ़क़ाल, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने बैठे बैठे इरशाद फरमाया, तुम्हारे अंदर कोई अजनबी शख्स तो नहीं, तुम्हारे अंदर कोई गैर तो नहीं, खास खास ही हो ना, ये नहीं कोई अहले किताब से तो नहीं। मैंने कहा हुजूर कोई नहीं, सारे अपने ही हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा दरवाजे को कुंडी लगा दो। फिर फरमाया हाथ खड़े करो और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे अपने हो, सारे अपने, कोई गैर तो नहीं, नहीं। कुंडी लगा दो, लग गई कुंडी। कब हाथ खड़े करो और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। अब अगली बात, अल्लाह के महबूब ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम खूबियां अल्लाह के लिए। ऐ अल्लाह तेरी तारीफें हैं, तूने मुझे हक के साथ इस कलमे के साथ मबूस किया, तूने वादा किया है, मुझे हुक्म दिया इस कलमे की तबलीग का, इसके पैगाम की नशर तोज़ी का, इस कलमे के नूर को एक एक सीने में उतारने का। मालिक मैंने वो उतारा और मैंने उस पैगाम को पहुंचाया। मालिक फिर तूने इस कलमे के हामिलीन के लिए जन्नत का वादा भी किया है और तू वादे भी सच्चे करता है, तेरा वादा झूठा नहीं होता, तू वादे पूरे करता है। अल्लाह अकबर। ये हुजूर ने इरशाद फरमाया। सुम्मा काल, फिर अल्लाह के महबूब ने फरमाया, बशारत हो अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया, अल्लाह ने तुम्हारी खताएं माफ कर दी, अल्लाह ने तुम्हारे गुनाह बख्श दिए। तो सहाबा को अल्लाह के महबूब ने बशारत दी। एक और रिवायत सुनी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, जिसने एक दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ा। कितनी मरतबा? 100 मरतबा। क्या पढ़ा? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। फरमाया कि उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हो तो अल्लाह माफ फरमा देगा। तो ये अपने वज़ाइफ में शामिल कर लीजिए, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। और हदीस बुखारी है, बल्कि बुखारी की सबसे आखिरी रिवायत है कि 2 कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह को महबूब हैं और जुबान पर मुश्किल नहीं, जुबान पर बड़े आसान हैं, और जब मीज़ान पे रखे जाएंगे तो पलड़े को झुका देंगे, बड़े भारी हैं मीज़ान पे। वो 2 कलमे यही हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तो अगर इसको 100 मरतबा रोजाना पढ़े तो समुंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हो तो अल्लाह माफ फरमा देता है। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, हर शय का एक दिल होता है और कुरान मजीद का दिल सूरा यासीन है। जिसने 1 मरतबा सूरा यासीन की तिलावत की, अल्लाह 10 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब अता करेगा। तो अपनी सुबह का आगाज सूरा यासीन से किया करें, कुछ वक्त नहीं लगता। नमाज फजर के बाद इशराक तक सूरा यासीन पढ़ लिया करें। सूरा यासीन अगर आप पढ़ के अपने दिन का आगाज करते हैं, आपका सारा दिन खैर से गुजरेगा। उस दिन अगर कारोबार करेंगे तो बरकत होगी, उस दिन किसी काम को जाएंगे तो रहमत होगी, उस दिन बहुत सारी बीमारियों से, आफात बिल्लियात अर्जिया और समाविया से, दुश्मनों के हसद से, मुबग़िज़ीन के बुग़्ज़ से बचे रहेंगे, लोगों के शर से, हादसात से महफूज रहेंगे। तो अपने दिन का आगाज सूरा यासीन से करें और कितना बड़ा अजर है। आप 1 साल में भी शायद 10 कुरान मजीद ना खत्म कर सकें और सूरा यासीन पढ़ें तो 10 मरतबा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब नसीब होगा। रसूल करीम ने इरशाद फरमाया, इन्ना सूरतन फिल कुरान सलासून आया
कुरान मजीद में एक सूरत है जिसकी 30 आयत है। अगर कोई शख्स उसकी तिलावत करता है तो वो सूरत पढ़ने वाले की शफात करती है और इतनी बार शफात करती है कि उसको बख्शवा के छोड़ती है। वो सूरत कौन सी है? वह या तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। ये सूरतुल मुल्क है, 30 आयतें हैं। जो शख्स इसकी तिलावत करे ये इतनी बार सिफारिश अल्लाह की बारगाह में करती है कि अपने पढ़ने वाले को बख्शवा के छोड़ती है। तो अपने दिन का आगाज सूरा यासीन से करें और अपनी शब का आगाज सूरा मुल्क से करें। सोने से पहले सूरा मुल्क की तिलावत जरूर कर लें, तो इंशाअल्लाह इससे रात बरकत से गुजरेगी, आफात व बिल्लियात से बचे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू गुफरान और रहमत से माला माल फरमा। लोग कहते हैं कि उल्लू आ गया, और जहां उल्लू होता है वहां उजाड़ होता है। ये बर्बादी की अलामत है। उल्लू इस्तियारा बना लिया बर्बादी का, और ये हमारा खुद साख्ता एक तस्वुर है कि जिस जगह पे उल्लू बोलें, उल्लू बैठे तो वहां बर्बादी आ जाती है। अजीब फलसफा घड़ लिया, उल्लू के बोलने से बर्बादी कैसे आएगी? और अंदर का नफ्स उल्लू बन गया तो फिर बर्बादी आएगी। उसको देखो कि वो खराब तो नहीं हो गया। मैं कहता हूं एक घर में सुबह का आगाज सजदों से होता है, फिर सूरा यासीन की तिलावत की जाती है। सारा दिन घर के अंदर मोहब्बत, चाशनी और प्यार से अफराद खाना का वक्त गुजरता है। कमाई करके लाने वाला घर का कफील रिज़्क़ हलाल ला के अपने बच्चों को खिलाता है। नजर की पाकीज़गी और ख्यालों की तहारत का सामा होता है। शाम को सूरा वाक़या पढ़ी जाती है, सोने से कबल सूरा मुल्क की तिलावत होती है। दहलीज पे आने वाले साइल को झिड़का नहीं जाता, मेहमान की इज्जत की जाती है, तकरीम दी जाती है, घर को साफ सुथरा रखा जाता है। कुरान की तिलावत की महक फैली होती है घर में। घर के अंदर दरख्त पर 100 उल्लू भी बैठ जाएं, उस घर में बर्बादी नहीं आएगी। और एक घर में अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा जाता है। अफराद खाना एक दूसरे को गालम गलोच करते हैं। कुरान कभी खोल के किसी ने नहीं देखा, सजदे की किसी को तौफीक नहीं हुई, तो घर के अंदर जो मर्जी रख लें बरकत नहीं होगी। मियां ये तो तुम्हारे आमाल का नतीजा था, लेकिन तुमने लगा दिया उल्लू के खाते कि उल्लू बैठ गया, ये सब कुछ बर्बादी हुई। तुमने वादे तोड़े, तुमने लोगों को 2 नंबर माल दिया, इसलिए तुम्हारी फैक्ट्री बर्बाद हुई, इसलिए तुम्हारी दुकान नहीं चल रही। कि तुम कहते कुछ हो देते कुछ हो। एक मर्तबा जो धोखा खाता है वो दोबारा तुम्हारी दुकान पे नहीं आता। ये उल्लू का काम नहीं है, ये तुम्हारे नफ्स के उल्लू का काम है। लेकिन तुमने उल्लू पे मर के किसी मनहूसा, ये फला मनहूसा हमारी दुकान पे आई सुबह, आज सारा दिन गाहक ही नहीं आया। क्या फलसफा तुमने तराशा? तो फरमाया वला हामा, उल्लू भी कोई चीज नहीं, वला सफरा, और ना ही सफर का महीना कोई चीज है कि आप सफर के महीने के नाम लगा करके किसी चीज का इनकार कर दें। ये अल्लाह की तरफ से है जो तुम्हें नसीब होता है। वहीं यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहू इल्ला हू, अल्लाह ताला तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई उस नुकसान को दूर नहीं कर सकता सवाए अल्लाह के। और अगर अल्लाह तुम्हें कोई भलाई देना चाहे, तुम्हें बेहतरी अता करना चाहे, फला राद्द लिफज़लिही, अल्लाह के फजल को कोई वापस भी नहीं कर सकता, लुटा भी नहीं सकता, अल्लाह के फजल को कोई टाल भी नहीं सकता। सारा जमाना लग जाए किसी शख्स को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन अल्लाह की नुसरत उसे नसीब हो, कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। सारा जमाना किसी को फायदा देने में लगा रहे, लेकिन अल्लाह ना चाहे तो एक जर्रे का फायदा भी नहीं पहुंचा सकते। ऐसा होता है ना कि मरीज बहुत दौलतमंद है और आला से आला इलाजगाह में उसको पहुंचा दिया गया। हर वक्त 5-6 डॉक्टर ऊपर खड़े हैं, एक एक सांस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कई मशीनों के अंदर एक एक चीज का हर वक्त टेस्ट हो रहा है, लेकिन मौत आई तो सारे डॉक्टर एक सांस की भीख भी नहीं दे सकते। और दूसरा बीमार पड़ा है, हॉस्पिटल वालों ने भी जवाब दे दिया, उस गरीब को किसी परवाह नहीं की है, उसको बाहर झाड़े में फेंक दिया। मेरा मालिक शिफा देना चाहे तो उसे अता कर दे। शिफा अल्लाह के पास है, मौत अल्लाह के पास है, जिंदगी अल्लाह के पास है, खैर अल्लाह के पास है।
وہ جس کو جو چاہے عطا کرے. اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو, اللہ پر توکل کرو, اللہ پر بھروسہ کرو. وہ چاہے تو ہوتا ہے, وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا. اس کے چاہنے سے ہے اور اس کے نہ چاہنے سے نہیں ہے. اس لیے اس کے چاہنے سے خیر ملتی ہے, اس کو خیر چاہے تو خیر ملتی ہے, اور اگر وہ کسی کی خیر نہ چاہے تو سارا زمانہ بھی لگ جائے تو خیر نہیں.